Jamshed Ahmed, 33rd Recruits Course, All-Rounder First. Jamshed Ahmed. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں موجود ہیں، مہمان خصوصی ہیں اور بہتر کارکردگی دکھانے والے پولیس اہلکاروں کو اس وقت وہ انعامات بھی دے رہے تھے اب سے کچھ دیر قبل، اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس تقریب میں موجود ہیں اور اسلام آباد پولیس کے وقار کو ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ ہم ملتمس ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی پریڈ سے خطاب کریں۔ جناب شیخ رشید احمد، بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، آئی جی عامر صاحب اور نئے نوجوان پولیس کے نوجوانوں، وزیر اعظم صاحب لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتا، مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اللہ جب جس کو عزت دیتا ہے تو وہ ایسے کام لیتا ہے کہ آج پاکستان میں پولیس کا ہر سپاہی سر اٹھا کے چل رہا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ آپ کو بھی ماں کی دعا ہے وزیر اعظم صاحب، مجھے بھی ماں کی دعا ہے۔ آج بدھ ہے، 8 دن میرے ہو گئے ہیں، 1800 کے 1800 کیمرے پرائم منسٹر صاحب 500 کی بجائے جو خراب تھے 1800 کے 1800 کیمرے چل رہے ہیں۔ تمام پولیس چوکیاں لوگوں کو تنگ کرتے تھے، مری جانے والے لوگوں بیچاروں کو ان کے سامان چیک کرتے تھے، اور بیچاری بہنوں اور بیٹیوں کے میرا مطلب ہے تلاشیاں لی جاتی تھی۔ صرف 3 چوکیاں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس ای سی سی میں جو گاڑیاں آپ آئی جی صاحب نے مانگی ہیں وہ میں ٹیکنیکل گرانٹ میں مینج کر لوں گا تاکہ آپ پہ بوجھ نہ بنے، آپ پہ بوجھ نہ بنے۔ وزیر اعظم صاحب، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا وزیر ہوں، میں 15ویں وزارت کر رہا ہوں اور خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ اللہ آپ کو بہت بڑی عزت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس اقتصادی، معاشی، سیاسی اس سارے مسائل سے آپ باہر قوم کو لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ دنیا میں آپ کا ڈنکا بجے گا۔ میری جتنی آپ محنت کرتے ہیں یہ میرا ایمان ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب بہت زبردست ٹیم ہے، ہمارے نسیم کھوکر صاحب زبردست سیکٹری ہیں، واجد ضیاء صاحب کے ساتھ میں نے پولیس میں بھی کام کیا ہے، اور دوسرے عامر بھی سی ڈی اے 200 کنال انہوں نے صرف زمین دی ہے پولیس کے لیے، وہ 400 کروانی ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی۔ اور علماء کرام کے 500 کے 500 مدرسوں سے انہوں نے بھرپور کالا کالا رسول اللہ کا علم بنایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، اور یہ آپ کا عہد ہے کہ آپ نے اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب ہم اس ملک کے تمام مکتبہ فکر کے علماء کو ساتھ لے کر نہ چلیں۔ انشاءاللہ میں مختصر آپ کے سامنے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا، میں شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ ٹرپل ایس ورکر ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وزارت داخلہ 120 دن میں بدل جائے گی وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی یہ بدل جائے گی، ہم لوگوں کو سہولت دیں گے۔ اور آج جو آپ نے ایک تاریخی کام کیا ہے، کراچی سے لے کے تورخم تک ہر پولیس والا یہ سمجھتا ہے، آپ نے آج سپاہی کو عزت دی ہے، آج سپاہی کو عزت دی ہے آپ نے۔
اور یہ سپاہی وہ سپاہی ہے پرائم منسٹر صاحب، دھوپ میں چھاؤں میں یہ سارے ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں، ڈپلومیٹس کے گھروں پہ، ان کی ایمبیسیز میں، ایلیٹ کلاس میں، ٹرانسپورٹ بھی ان کے پاس وہ سہولت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ دن رات ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اسلام آباد مری تک پھیل گیا ہے، ادھر ترنول تک پھیل گیا ہے، ادھر فتح جنگ تک پھیل گیا ہے، اور لوئی بھیر تک پھیل گیا ہے۔ سو برائے مہربانی یہ جو 1100 رنگ روٹ ہیں اس میں 5,000 کا اور ان کو اضافے کی اجازت دیں تاکہ یہ اور وزیر اعظم صاحب 120 دن میں تمام اسلام آباد کے باغات جو ہیں گارڈن ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور ایک گریڈ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، 500 کے 500 گارڈن کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ قوم آپ کو سننا چاہتی ہے، ہم تو روز ٹی وی پہ 2 3 دفعہ بلکہ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب آپ مجھے اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کا نام شوکت خانم ہسپتال سے زندہ رکھا ہے۔ کئی وزیر اعظم آئے وزیر اعظم صاحب اور چلے گئے، لیکن زندہ نام اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور جو انسانیت کی خدمت آپ نے کی ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کی سچائی پر، آپ کی دیانتداری پر، آپ کے ہارڈ ورک پہ الحمدللہ ساری قوم متفق ہے، ساری قوم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ مسائل ہیں چھوٹے پھوٹے ہلکی پھلکی، کچھ فرق پڑ گیا ہے، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اور پڑ جائے گا۔ آج سپاہی کو آپ نے عزت دی ہے، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ میں براہ راست آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ابلاغ سے آتا ہے نالوں کا جواب آتا ہے۔ ایک بات میں بھول گیا، صرف ایک وزیر اعظم صاحب سارے مسئلے چھوڑ دیں، ان کی تنخواہ پنجاب پولیس کے برابر کریں۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب پریڈ سے خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے پولیس میں پاس آؤٹ کیا جنہوں نے، آج میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آج اس لیے خاص طور پہ یہاں آیا ہوں، اور شیخ رشید نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کا مقصد تھا کہ میں پاکستان کی پولیس کو ایک پیغام دوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب تک ایک قوم کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جو بارڈرز پہ قوم کی جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اور جو اندر ملک کے جو سیکیورٹی دیتی ہے ایک قوم کو، اور جو ایک انویسٹر کی، ایک بزنس مین کی، ایک شہری کی جو پروٹیکشن دیتی ہے وہ ہے پولیس۔ اور جب تک، اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کبھی قوم میں خوشحالی نہیں آتی جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، جب تک سیکیورٹی نہیں ہوتی لوگوں کے لیے۔ اس لیے پولیس کا بہت بڑا ایک مقام ہوتا ہے ایک معاشرے میں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج تک پولیس کا وہ مقام نہیں ہوا ہمارے معاشرے میں۔ اس کی ایک تاریخ ہے پیچھے، غلامی کا دور تھا، انگریز کی پولیس تھی، تو انگریز پولیس سے غلط حرکتیں کرواتا تھا، لوگوں کو دباتا تھا، لوگوں کے حقوق ختم کرتا تھا۔
पुलिस से लोगों को खौफ था। वही अंग्रेज अपने मुल्क में, पुलिस वहाँ उस तरह की नहीं थी। अपने मुल्क में जो पुलिस थी वो शहरियों की देखभाल करती थी, शहरी उसको अपना समझते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें ग़ुलाम बनाया हुआ था और हुकूमत करता था, तो पुलिस का रवैया यहाँ मुख्तलिफ था। मैं आज इसलिए आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कौम हमारी पुलिस को पसंद करे, अपना समझे, प्यार करे उनसे। हम जब पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो सबसे ज़्यादा जो दहशत गर्दी थी वो पख्तूनख्वा की पुलिस के ख़िलाफ़ थी। बहुत 500 से ऊपर पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, पुलिस का मोराल नीचे गिर चुका था। लेकिन वहाँ की पुलिस जिस तरह तब्दील हुई हमारे देखते देखते, जिस तरह उस पुलिस ने फिर दहशतगर्दी का मुकाबला किया, और फिर ऐसा वक्त आया कि पेशावर के शहरियों ने, मर्दान के शहरियों ने पुलिस की हमायत में जलसे किए, जुलूस निकाले। और मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ कि अपनी आंखों के सामने मैंने उस पुलिस को बदलते देखा। तो मैं आज आपको भी, क्योंकि आपने आज पास आउट किया है, आपको मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और जो मेरा अल्लाह में ईमान है उससे आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये बात याद रखना, यही मैं एडवाइस अपने बच्चों को देता हूँ कि जब हम अल्लाह से नमाज में सिर्फ़ एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। हमेशा आपके सामने में दो रास्ते आएंगे, हर इंसान के सामने में कभी ना कभी उसको फैसला करना पड़ जाता है, दो मुख्तलिफ चॉइसेस आ जाती हैं। मैं जब क्रिकेट में ऊपर आ रहा था तो मेरे सामने भी ये दो रास्ते आ गए। साउथ अफ्रीका में उन दिनों में क्रिकेट खेलते थे, वो अपार्थाइड की रजीम थी, यूएन की सैंक्शंस थी, तो बड़े पैसे देते थे साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने के लिए। तो बड़ा मुझे पैसा ऑफर हुआ कि आप साउथ अफ्रीका आके क्रिकेट खेलें। लेकिन अगर मैं क्रिकेट खेलता था उनके लिए, तो मैं एक रजीम जो कि रेसिस्ट रजीम थी, अपार्थाइड की रजीम थी, मैंने उसको सपोर्ट करना था। तो पैसा तो मिल जाना था, लेकिन इज्जत नहीं मिलनी थी। फिर जब मैं कैप्टन बना, पहले ही कैप्टन में मुझे एक हिंदुस्तान के किसी बुकी ने ऑफर किया कि अगर आप टॉस का में फैसला बता दें तो आपको इतने पैसे देंगे। उन दिनों में बड़ा पैसा था वो। तो ये याद रखना कि ये हर इंसान को ये दो रास्ते, एक शैतानियत का रास्ता है, एक इंसान की अजमत का रास्ता है। एक रास्ता वो है जो अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो। वो रास्ता आसान रास्ता नहीं है। कई दफ़ा जो आप आसान रास्ता समझते हैं वो आपकी तबाही का रास्ता है। तो आपको हमेशा ये चॉइसेस करनी पड़ेंगी। और ये मैं आपसे बिल्कुल, ये जो शेख रशीद ने कहा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको भी जो तनख्वाह मिलती है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको नहीं, हमारे कितने तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि महंगाई बढ़ती गई है कई सालों से, तो उसकी वजह से तनख्वाहें इतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। तो ईज़ आसान होता है कि चले ये रास्ता ले लें, पैसा मिल जाएगा, सिर्फ ज़मीर बेचना होता है। लेकिन मैं आज आपको ये कहता हूँ कि कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह लिखा हुआ है कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। आप जो मर्ज़ी, आप हलाल की भी कमा सकते हैं, हराम की भी कमा सकते हैं, लेकिन कुरान में वाज़ेह है कि रिस्क उसके हाथ में है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, और शेख रशीद ने भी उसी टाइम पे देखा होगा,
وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، اور ان کے سامنے بھی یہ دو راستے تھے، وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے، اور بہت بڑی ایک عزت ہوتی ہے ملک کا سربراہ بننا، لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے، آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی بچے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے۔ کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو میں آج آپ کو پھر یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ساری یہ یاد رکھیں، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ 5 وقت میں اللہ کی جب نماز پڑھتے ہیں صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، یعنی آپ کا خوشی کا راستہ ہے۔ جو نعمتیں جب اللہ کسی پہ بخشتا ہے، وہ سب اس کو تو اندر سکون مل جاتا ہے۔ اور جو راستہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسان راستہ ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، اصل میں ان کی اصلیت تو اندر کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ اللہ جانتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں، پولیس کا بہت بڑا رول ہے۔ پولیس ایک معاشرے کے اندر جب لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اور لوگ پولیس کو اپنا لیتے ہیں، میری بات یاد رکھنا کہ وہ معاشرہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہاں سب سے بڑی چیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، سرمایہ کاری شروع ہوتی ہے۔ ہمارے بیرون ملک پاکستانی وہ سب سے بڑا اس ملک کا اثاثہ ہے۔ میں کیونکہ میرا واسطہ ان سے زیادہ تھا دنیا میں کرکٹ پہ پہلے ٹریول کرتا تھا، پھر اس کے بعد ویسے جب میرا باہر جانا ہوتا ہے تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتے ہیں، کوئی گھر لیتے ہیں، یا قبضے ہو جاتے ہیں ان پہ، تو جب وہ گھر اور پلاٹ ہی نہیں لے سکتے، وہ یہاں سرمایہ کاری کیسے کریں گے، فیکٹریاں کیسے لگائیں گے؟ تو وہی ذہن میں ڈال لیں کہ صرف اوورسیز پاکستانی اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اس وقت اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ، ہماری انویسٹمنٹ سیکیور رہے گی، سیف رہے گی، اور اس لیے پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس پاکستان کو اوپر اٹھانے میں۔ میں آپ کو آج سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی تنخواہیں پنجاب سے نیچی ہیں، انشاءاللہ میں ابھی آج جا کے بات کروں گا حفیظ شیخ سے، میں آپ کو یہ سب کو بتا دوں کہ یہ ملک، ہم جب پچھلے 2 سال سے جو ہمارے معاشی حالات ہیں، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے، گھر مقروض، سب سے زیادہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں۔ تو جب ایک گھر پہ قرضے چڑھتے ہیں تو کیا کرتا ہے گھر؟ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت گزرتا ہے، تو جب قرضے چڑھتے ہیں تو گھر اپنے خرچے کم کرتا ہے جب تک اس کی آمدنی نہیں بڑھتی، تو جب خرچے کم کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ ہم نے بھی میں نے اپنے آفس کے، پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر آفس کے 60 سے 70% خرچے کم کیے ہیں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے 40 ارب اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں خرچے کم کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیلنس کرنا ہے، ہم قرضوں پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ جو 2 ہمارے سب سے بڑے مسئلے تھے، ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ جو پیسہ ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں، یہ 5واں مہینہ ہے کہ وہ 17 سال کے بعد وہ سرپلس میں چلا گیا ہے۔
اور دوسرا جو ہماری آمدنی اور خرچے اندرونی ہیں، اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ ادا کرنی پڑیں تو اس میں بھی ہم نے اپنا بیلنس کر لیا، یعنی کہ ہم تھوڑا سرپلس پہ ہیں۔ یہ بہت بڑا 2 سالوں میں ہماری گورنمنٹ نے میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ 2 سالوں میں یہ ہوگا، لیکن جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو ساری قوم کو کہتا ہوں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ انشاءاللہ جس طرح آگے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، صرف ہم نے اپنی مینجمنٹ گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ ملک اٹھ جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ پولیس کو ہی نہیں، آپ کی تنخواہیں پنجاب نہیں، سارے پاکستان میں پولیس کی بھی تنخواہیں بڑھائیں گے۔ اپنے جو ہمارے سارے سرکاری نوکر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تنخواہ دار ہیں، انشاءاللہ سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے جیسے جیسے آمدنی ہماری بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن میں 2 چیزیں آج کہنا چاہتا ہوں خاص اسلام آباد پولیس کو۔ نمبر 1 کہ ساری اسلام آباد پولیس کے ہر گھر کو ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے ہم۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی، اور انشاءاللہ 10 لاکھ روپے کی ہر پولیس کے گھر کی ہیلتھ کی انشورنس ہوگی کہ 10 لاکھ تک کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ اپنا علاج کروا سکیں گے۔ اور دوسرا آپ کو میں جو ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ بنا رہے ہیں، اس کے اندر جو بھی تنخواہ دار، اور خاص طور پہ شروع آپ سے کریں گے، اسلام آباد پولیس اور آپ کے اسلام آباد میں جو فیڈرل یہ جو ہمارے سرکاری نوکر ہیں، ان سب کے لیے ہم اب وہ کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، کہ سرکاری نوکر جو اپنی تنخواہ سے جو کرایہ دیتے تھے، وہ کرایہ آپ کے گھروں کی قسطوں کے اوپر چلا جائے گا، یعنی کہ بجائے کرایہ دینے کے وہ گھر کی قسطیں دیں گے اور آپ کا وہ گھر اپنا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا بڑا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ میں، خاص طور پہ آپ جیسے پولیس والوں کے لیے، سرکاری نوکروں کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم پولیس سے شروع کریں گے اور ہم ہیلتھ کارڈز بھی آپ سے شروع کریں گے۔ باقی میں آئی جی صاحب جو آپ نے ریکویسٹ کی وہ میں ساری آپ کی جا کے پروسیس کروں گا۔ جو آپ نے چیزیں کہیں وہ کیونکہ میں بادشاہ نہیں اور پرائم منسٹر ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے اپنے فائنانس منسٹر سے، اس سے بات کر کے، تو انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش کروں گا آپ کی حمایت کروں۔ میں آپ کو آخر میں پھر اپنی پولیس کو آج آپ جو پاس آؤٹ کیے ہیں، آپ کے لیے بھی اپنی ساری پاکستان میں جو پولیس ہے اس کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہماری پولیس ایک اور لیول کی ہو، جس کی عزت ہو معاشرے میں، جو معاشرہ اس کو اون کرے۔ اور انشاءاللہ جس طرح پختونخوا کے اندر ایک چینج ہم نے دیکھا تھا، میں وہ سارے پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ جو نئے آج پاس آؤٹ کیا ہے، آپ سب کو تو میں پہلے اسلام آباد میں بالکل ایک فرق دیکھنا چاہتا ہوں کہ بالکل پولیس ایک جس طرح نیا پاکستان ہے، ایک نئی پولیس فورس ہمارے سامنے آئے جو ایک بالکل مختلف اس کی ایٹیٹیوڈ ہو، اس کا ایک لوگوں کے اندر شیخ صاحب نے کہا وی آئی پیز کا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں ہم۔ میں چاہتا ہوں کہ جو عام ہمارا شہری جو غریب آدمی ہے، آپ اس کو وی آئی پی بنائیں، وہ آپ کے لیے وی آئی پی ہو، اس کی رسپیکٹ ہو۔ ایک معاشرے کی پہچان کبھی نہیں ہوتی کہ اس معاشرے میں وی آئی پیز کیسے رہتے ہیں۔ ایک معاشرے کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کمزور طبقے کو وہ معاشرہ کیسے رکھتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کی ایٹیٹیوڈ جو میں دیکھوں گا، اپنے غریب لوگوں کی طرف آپ کی ایٹیٹیوڈ کیسی ہے، اور اس کے بعد پھر میں اگلی بھی آپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ آؤں گا اور آ کے پھر بتاؤں گا کہ 1 سال میں کیا فرق پڑا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
खान का इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे, ये कहा कि आमदनी बढ़ेगी तो सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, पुलिस एहलकारों को हेल्थ कार्ड देंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ये भी कहा कि वाली तनख्वाह काफ़ी नहीं है, इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों से मुतालिक हफीज़ शेख से बात करूँगा, जब तक आमदनी नहीं बढ़ती पूरी कौम की तरह सब्र करें। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने अपने 40% अखराजात कम किए। वज़ीर आज़म का पुलिस एहलकारों को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान भी सामने आया। ये कहा कि यहाँ आने का मकसद पाकिस्तान पुलिस को पैगाम देना था, सरहद पर हिफाजत फ़ौज करती है, अंदर पुलिस इस ख्याल रखती है जब तक जानो माल की हिफाजत नहीं होती कौम तरक्की नहीं करती। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये भी कहा कि चाहता हूँ आवाम पुलिस से प्यार करे, पुलिस का आज तक वो मकाम नहीं बना जिसके वो मुस्तहिक है, अमन व अमान कायम होने तक मुल्क में खुशहाली नहीं आती। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर का मजीद कहना था कि फ़ौज मुल्की सरहदों और पुलिस अवाम की जानो माल की हिफाजत करती है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को तब्दील किया। हम कर्जों पर मुल्क को नहीं चला सकते, नया पाकिस्तान हाउसिंग बना रहे हैं। सरकारी नौकर जो घरों का किराया देते थे अब घरों की किस्तें देंगे और उनके घर अपने हो जाएंगे। और ऐसे में उन्होंने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये कहा कि तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसा तो बना लेते हैं, अजाब कमा लेते हैं, ये पैसा अल्लाह का अजाब है। ये भी कहा कि बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है, चोरी के पैसे का क्या फ़ायदा, ये अल्लाह का अजाब है। ये भी कहा कि माजी के सियासतदान जिस रास्ते पर निकले वो इबरत का निशान है, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, चोरी बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये भी कहा। बिल्कुल, आज का ये अहम दौरा है, अहम खिताब है जिसमें अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तबाही का रास्ता अपनाने वाले पैसा तो बना लेते हैं लेकिन अजाब कमा लेते हैं, ये पैसा अल्लाह का अजाब है। बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है। हम बावसफ, हम बेदार, हम चौकस, हम ही मुहाफ़िज़ो निगहबान। ख़वातीन हज़रात, परेड में शामिल दस्ते मार्चिंग कॉलम्स में मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। परेड कमांडर एसपी मोहम्मद उस्मान टीपू, सेकंड परेड कमांडर मोहम्मद फैसल और अलमबरदार दस्ता खूबसूरत मार्च करते हुए अपनी पोजीशन तय कर रहा है। आपको बताएं इस वक्त समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ये पुलिस की पासिंग आउट परेड के मनाजिर हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद हैं और उन्होंने खिताब भी किया है। तो बुलेटिन बताएंगे कि पीटीएम की रैली कहां तक पहुंची, कोरोना ने मजीद कितनी तबाही मचाई, गैस बहरान पर किस हद तक काबू पाया गया, बागों के शहर लाहौर में कचरा क्यों बढ़ गया, इसके अलावा मौसम का अहवाल भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र एक हादसे का। न्यू कराची में आइस फैक्ट्री में कंप्रेसर फट गया, इमारत की छत गिर गई। हादसे में मजीद एक जख्मी दम तोड़ गया। जहां भाग अफराद की तादाद अब 10 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और हैवी मशीनरी भी मंगवा ली गई है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट्री का कंप्रेसर खौफनाक धमाके से फटा, जिसके बाद हर तरफ धुआं फैल गया। फैक्ट्री की छत मजदूरों पर आ गिरी। धमाका इतना जोरदार था कि अतराफ की 3 फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा। मदद के लिए हर तरफ चीखो पुकार थी। इलाका मकीन खुद ही आगे बढ़े और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और रेंजर्स की टीमें भी जाए हादसा पर पहुंची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद रात गए जाए हादसा पहुंचे और इमदादी कामों का जायजा लिया। ये ऑपरेशन स्टार्ट है कि रेस्क्यू वर्कर्स जो हमारे स्पेशलाइज होते हैं, जो कि इसके अंदर से डिग आउट करके मलबे से जो है बॉडीज निकाल रहे होते हैं। जहाँ तक फिगर्स का ताल्लुक है अभी तयन करना मुश्किल है। 2-3 फैक्ट्रीज कोलैप्स कर गई हैं इसकी वजह से और खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि सिलेंडर ऑलरेडी इसके अंदर प्लेस्ड है। फैक्ट्री मुलाजिमीन के मुताबिक जब हादसा पेश आया 50 से जायद अमला काम में मसरूफ था। फैक्ट्री का मालिक इस वक्त लंदन में है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी मुआयना किया और नमूने टेस्ट के लिए जामिया कराची भेज दिए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
तो इस वक्त जायवा कुआं पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते चलें कि रेस्क्यू का अमल जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इस हादसे में तकरीबन 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 26 ज़ख्मी हुए हैं और इंतज़ामिया की जानिब से मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है और अतराफ़ की 3 इमारतों को भी ऐसे में शदीद नुकसान पहुँचा है। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहनवाज से। शाहनवाज, अपडेट कीजिए, क्या सुबह से अब तक कोई ज़ख्मी निकाला गया है? देखिए, मैं इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ जहाँ गुज़िश्ता रोज़ ज़ोरदार धमाका हुआ था। ये धमाका यहाँ पर एक आइस फैक्ट्री में हुआ था जिसके नतीजे में जो फैक्ट्री की इमारत थी ज़मीन बोझ हो गई थी। इमारत के मलबे तले दबने से अब तक जो है 10 अफराद की जो है हलाकतें हो चुकी है जबकि 30 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन दिखाएंगे कि इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर हैवी मशीनरी को बुलाया गया है और वो मलबा हटा रही है। मलबा गिरने से इत्तला पे जो दीगर फैक्ट्रीज थी, मजमूई तौर पर 5 फैक्ट्रीज थी जो इससे मुतासिर हुई हैं। इसके बिल्कुल मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं, ये बिल्कुल इसके साथ एक कंपाउंड वाक़ है जहाँ पर 20 से 25 छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं वो भी इससे मुतासिर हुई हैं। उनका जो है काम भी इस वक्त रुका हुआ है। यहाँ पर लाइट भी मुनक़ते कर दी गई है। यहाँ पर अब से कुछ देर कब जो है असिस्टेंट कमिश्नर भी आए थे, SBCA के अफसरान भी आए थे, उन्होंने जायवा कुआं का दौरा किया। अभी यहाँ पर जो इब्तदाई तौर पर काम को थोड़ा स्लो किया जा रहा है, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जो है कम किया जा रहा है क्योंकि अंदर मलबे तले कुछ अफराद दबे होने की इतलात है। इसी वजह से यहाँ पर मैन पावर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू का ऑपरेशन है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ इसके मलबे को हटा लिया जाए। इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू भी मौजूद है, पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तो मलबा तो उठाया जा रहा है, तो क्या किसी ऐसी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे अगर कोई ज़िंदा है, ज़िंदगी के आसार का पता चलाया जा सके, या सिर्फ मशीनरी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है? और ये भी बताइएगा, क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कोई आया है, मुआयना किया है? और जिस तरह से इस इमारत की छत गिरी, उसके साथ जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी मुतासर हुई, तो क्या इससे पहले भी कोई मुआयना किया गया था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, मखदूश करार दिया गया था? देख, कॉल करके पूछ, मैं फ्रेम में हूँ या फ्रेम में आउट हो गया? ठीक है, ये सूरत हाल इस वक्त जो यहाँ पर बनी हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है, मैन पावर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हैवी मशीनरी भी यहाँ पर लाई गई है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से मलबा हटाया जा सके। और अगर कोई इस वक्त मलबे के नीचे दबा हुआ है तो इस हवाले से भी कोशिश की जा रही है। मलबा इस तरह से हटाया जा रहा है कि अगर कोई ज़िंदा है इस वक्त नीचे तो उसे भी निकाला जा सके। शाहनवाज अली कादरी, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू कराची हादसे के बाद लाशों और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया। 26 जख्मी जेर इलाज हैं जिनमें से कई की हालत नाजुक है। लोग अपने प्यारों को तलाश करते रहे, ऐसे में रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखने में आए। बीबी जिंदा मेरा बेटा। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में कंप्रेसर फटने का अफसोसनाक वाकया। इस माह की तरह के कई अफराद अस्पताल में अपने प्यारों को तलाश करते रहे। मेरा एक भाई था, एक रिश्तेदार है, वो भी भाई था, एक दूसरा दोस्त है, 2 मिले हैं, एक अभी तक मिला नहीं है। जहां बाग और जख्मी होने वालों में फैक्ट्री के मुलाजमीन भी शामिल हैं। काम तो वही कंपनी में करते, सफाई का काम करते थे। भाई ये हादसा हो गया है। नाम सन्नी है, टंडो आदम का रहने वाला है। इसके माँ बाप गाँव में 4 महीने हो गए हैं। एक मुश्किल स्टोर में नहीं करते, तकरीबन 6-7 स्टोर है, सब में काम मिल के काम करते हैं। हम भी उनके साथ काम करते हैं। एक मेरा भांजा है, एक मेरा कज़न है, एक भाई है। वाक़े के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। न्यू कराची हादसे में जांबाग अफराद के लवाहिकीन फैक्ट्री मालकान पर बरस पड़े। मरने वालों में घर का वाहिद कफील मोहसिन भी शामिल है। उनकी वालिद का कहना है कि फैक्ट्री वाले बेटे से बहुत काम लेते थे, जबकि खातून रिश्तेदार का कहना था कि जब भी कोई हादसा होता है फैक्ट्री मालकान बाहर चले जाते हैं। घर में एक वक्त का मौसी अगर कमा के लेकर आता है तो वही पकता है,
ये हाल है मोहसिन के घर का। कल ही उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है। वो बेचारा बच्चा, हम उससे राब्ते में थे, लेकिन वो कल फ़ोन रात 1:30 बजे उसका फ़ोन चोरी हुआ है। फ़ोन तो चोरी हो गया, हम बर्दाश्त कर गए, लेकिन अब बच्चे को नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। तो यही होता है, जब कोई हादसा हो जाता है तो वो मालिक बाहर मर जाते हैं जाके। मालिक अगर बाहर है तो मालिक फ़ोन करके ये भी तो बोलते थे ना कि मोहसिन आके आप ये काम कर दो। अब मोहसिन मर गया है तो मोहसिन आके उसका नेमुल बदल नहीं कर सकता ना, लेकिन ये आके बोल तो सकता है कि मोहसिन के घर में जाके ये राशन डलवा दो और मोहसिन के घर में ये खर्चा कर दो आप, या मोहसिन की कब्र पे आके फातिया पड़ जाए वो मालिक। उसको इमरजेंसी हर वक्त कॉल करके बुलाते थे, छुट्टी वाले दिन भी नहीं छोड़ते थे। उस पर इतना काम का लोड डाला हुआ था मेरे बच्चे के ऊपर। और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आइंदा हफ्ते कराची में अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। KCR तजावुजात ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक केस की समाअत 29 दिसंबर को होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, अहम समाअतें जो है वो ज़ेर बहस आएंगी, क्या कराची में अमनी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है? जी, अहम तरीन मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं और एक हफ्ता जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कराची में होंगे। इसके साथ ही 3 रुकनी बेंच तश्कील किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अहम मुकदमात जिसमें मफाद आमा के कई मुकदमात शामिल हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें कराची बेअमनी केस भी है, इसके अलावा जो इंक्रोचमेंट है उसका केस शामिल है, KCR है, इसके अलावा दीगर अहम तरीन मुकदमात शामिल हैं। चीफ जस्टिस के अलावा एक दूसरा बेंच भी कराची में आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मौजूद होगा। मजमूई तौर पर 2 बेंचेस आइंदा हफ्ते कराची रजिस्ट्री में काम करेंगे। ठीक है, 2 बेंचेस आइंदा हफ्ते कराची रजिस्ट्री में काम करेंगे। अपडेट करे थे इरफानुल हक, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र PDM का, जो मर्दान में पावर शो करेगी। नून लीग के कारकुन मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए सवात एक्सप्रेस मोटरवे टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और SOPs की भी खिलाफ वर्जी यहाँ पर जारी है। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से, जो इस वक्त वहीं पर ही मौजूद हैं। तो अब्दुल रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मैदान में अपोजिशन के रैली और जलसे के लिए यहाँ पर मुस्लिम लीग की कारकुनान जमा है, जो कि यहाँ से अपनी कायद मरियम नवाज को जलूस की शक्ल में, रैली की शक्ल में मर्दान ले जाएंगे, जहाँ पर वो बड़ी रैली और जलसे में शिरकत करेंगी। यहाँ पर कारकुनान इस वक्त जमा है, अगरचे इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं लग रही और अभी जमा हो रहे हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। किसी कारकुन ने भी जो है यहाँ पर मास्क नहीं पहना और न ही सोशल फासले का ख्याल रखा जा रहा है। तो ख़तरा है कि इससे कोरोना का जो वायरस मज़ीद जो स्प्रेड है वो होगा और इनको बिल्कुल एहसास ही नहीं है इसका कि वो कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मर्दान के नौशेरा रोड पर PDM के मरकजी कायदीन मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर रहनुमा जलसे आम से खिताब करेंगे। कारकुनान टोलियों की शक्ल में मर्दान पहुंचना शुरू हो गए। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जानते समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद हैदर, इस वक्त क्या सूरत हाल है और मरकजी कायदीन कब तक आ जाएंगे? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर नौशहरा मर्दान रोड पर मौजूद है और आज जो है PDM यहाँ पर मर्दान में जो है अपना पावर शो करने जा रही है। PDM की जो मरकज़ी क़ियादत है, जिसमें मरियम नवाज़ भी शामिल है, मौलाना फजल रहमान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी, वो सब जो है यहाँ पर जो रैली की एक शक्ल में आएंगे और यहाँ पर जो है कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। टोलियों की शक्ल में लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मर्दान नौशहरा रोड जो है सिक्योरिटी के बाद जो है पुलिस की वजह से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश हो रहा है। और यहाँ पर कोई भी स्टेज नहीं बनाया गया, ना ही कोई कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तो यहाँ पर वो रैली की सूरत में आएंगे और यहाँ पर ये अपने खिताबात करेंगे और यहाँ से खिताब करके वो जाते रहेंगे। इनका यही कहना इंतज़ाम है क्योंकि 1 बजे का उन्होंने जलसे का टाइम दिया था कि यहाँ पर वो पहुँचेंगे और यहाँ पर रैली से खिताब करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है लोगों के सिलसिलों का आने का सिलसिला जो है कम ही जारी है। कम ही अभी तक यहाँ पर लोग आए हैं, टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं, जिसमें कौमी वतन पार्टी के लोग भी शामिल हैं, ANP के शामिल हैं और GUI के शामिल है, जबकि मुस्लिम लीग नून का अभी तक कोई भी कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँचा। ठीक है, ना कोई स्टेज है और ना ही कुर्सियां, रैली की सूरत में खिताब किया जाएगा। अपडेट करे थे सज्जाद हैदर, आपका शुक्रिया। और PDM में क्या चल रहा है? बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के लिए बिलावल ने मरियम नवाज समेत तमाम रहनुमाओं को बाज़ाब्ता दावत दी, मगर मौलाना फजल रहमान को बुलावा नहीं मिला। माजरा क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। PDM में क्या खिचड़ी पक रही है? बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पीपल्स पार्टी लाड़काना में मैदान सजाने वाली है।
भुट्टो के गढ़ में पीटीएम रहनुमाओं की तस्वीर लग गईं। बिलावल ने मरियम नवाज और दीगर पार्टी सरबराहान को फोन करके आने की दावत दी। मरियम नवाज ने उनकी दावत कबूल भी कर ली, मगर दूसरी तरफ बिलावल ने पीडीएम के सरबराह को बाज़ाब्ता दावत देना भी गवारा न किया। फजलुर रहमान के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पीडीएम के जलसे में उन्हें रात 2 बजे डाइस पर आने का मौका मिला था, जब पेंडाल तकरीबन खाली हो चुका था। इससे पहले एपीसी में भी उनकी तकरीर को लाइव जाने से रोक दिया था। फजलुर रहमान ने इस पर शिकवा भी किया था। लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है, तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज। अब देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान इस बार भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे या सबर का घूंट पी कर रह जाएंगे। शरानी पार्टी से क्यों नाराज है, जेयूआई में क्या चल रहा है? हाफिज हुसैन अहमद ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में सब बता दिया। फेयर इलेक्शन की हम पूरे मुल्क में बात करते हैं, तो फिर पार्टी इलेक्शन भी फेयर हो और मौरूसियत की बुनियाद पर ना हो। आज़ादी मार्च के हवाले से भी जब हमारी बात नहीं मानी गई और मौलाना ने पार्टी के हवाले से ये फैसला दे दिया, उसके बाद फेटफ के हवाले से भी यही बात हमने की। बात बिगड़ी उस वक्त जब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसा बयानिया लंदन से उन्होंने दिया था कोयटा के जलसे में। फौज को कहा गया था कि आप उठें और जर्नलों को गिरफ्तार में पकड़ें। अगर वाकई आप इस्तीफा दे रहे हैं और सेनेट में आप हिस्सा नहीं ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन को रोक रहे हैं, फिर आप हम पे ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि हम सेनेट की वजह से जो ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सबसे होनी चाहिए, न सिर्फ उनसे बल्कि नैब के चेयरमैन साहब से भी होनी चाहिए। जो भी लोग हैं यकीनन एहतिसाब जो है वो बेरहम होना चाहिए। रहनुमा राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पार्टी का मुस्तकबिल मरियम नवाज और हमजा के इत्तेहाद से मशरूत है। मशवरा दिया दोनों अपने बड़ों की मिसाल कायम रखें। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का इत्तेफाक जो है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत रहा है, हमजा शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहब अपने बड़ों की इस मिसाल को कायम रखना चाहिए। इन दोनों का भी आपस में जो इत्तेफाक है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। मैं तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उसमें कोई बंदा जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जावेद लतीफ़ साहब से मैं समझता हूँ कि ये स्लिप ऑफ टंग हुई है। शरानी साहब जो हैं तो ये अब सारे एक्सपोज हो गए, पता चल गया सब। बाकायदा उनको खिलाया गया है, उनको बाकायदा जो है वो पूरी तरह से जो है वो उनको सिखाया गया है। और अभी आपको बताएं कि जाली अकाउंट स्कैंडल का एक और बड़ा मुलजिम प्ली बार्गेन के लिए तैयार हो गया। अरबों रुपए की सरकारी जमीन हथियाने के लिए 3.5 करोड़ रुपए रिश्वत देने वाले एहसान इलाही ने प्ली बार्गेन के लिए नैब को दरखास्त दे दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, 3.5 करोड़ अगर रिश्वत दी जा रही है तो अकाउंट्स की तफसीलात क्या सामने आई हैं? देखिए, रिश्वत 3.5 करोड़ की थी, लेकिन जमीन अरबों की थी जो इसके बदले में हथियाई गई थी, ऐसा बताया गया था। जेआईटी की जानिब से जो तैयार की गई थी रिपोर्ट उसमें, और ये इस स्कैंडल की तहकीकात के दौरान सामने आया था कि सिंध में सरकारी जमीनें गैर कानूनी तौर पर हथियाई गई और इसमें अरबों रुपए मालियत की सरकारी जमीन अलाट कराने के लिए मुलजम एहसान इलाही ने प्ली बार्गेन की दरखास्त अब दे दी है। जो जेआईटी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 562 एकड़ सरकारी जमीन का गबन हुआ था, जिसमें से 362 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल की थी। 29 एकड़ प्राइवेट जमीन देकर बदले में ये जमीन अपने नाम पर अलाट करवाई गई थी और कुल 562 में से 262 एकड़ जमीन रिपोर्ट के मुताबिक एहसान इलाही के फ्रंटमैन को अलाट हुई थी। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए सेल और मार्केटिंग का एनओसी हासिल करने की गर्ज से साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे मंजूर कादर, उनको 35 मिलियन की रिश्वत दी गई थी। इस केस में 10 अरब रुपए की मालियत की जमीन पहले ही प्ली बार्गेन के जरिए नैब रिकवर कर चुका है और अब एक और मुलजिम जो एहसान इलाही हैं उनके जिम्मे जो रकम है उसका तखमीना लगाया जा रहा है और ये इम्कान है कि जनवरी के दौरान इस प्ली बार्गेन पर पेशरफ्त हो जाएगी। और एहसान इलाही ने इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दौरान ही इस प्ली बार्गेन पर पेशरफ्त हो जाएगी। रिश्वत करोड़ों की, जमीनें अरबों की। अपडेट कर रहे थे सुहेल रशीद, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मोहलिक वार जारी है। एक दिन में मजीद 84 अफराद जान से गए।
2142 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 35,621 कोरोना टेस्ट किए गए, 2142 पॉजिटिव निकले। एक्टिव केसेस की तादाद 37,905 हो गई। 24 घंटों में मजीद 84 मरीज जान की बाजी भी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 9,557 हो गई। और मीरा का मोबाइल फ़ोन गुम हो गया। अदाकारा ने ऐलान किया है जो भी गुमशुदा मोबाइल फ़ोन तलाश करके देगा उससे ना सिर्फ खुद मुलाकात करेंगी बल्कि 5 लाख रुपए नकद इनाम भी देंगी। समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, ये सुन लेते हैं। टेलीफोन जैसे गुम हो जाता है वैसे ही मेरा टेलीफोन गुम हो गया। तो कैसे हो गया जब इतना इम्पोर्टेंट था? आपने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। मैं चाहती हूँ कि मैंने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है ताकि मेरा फ़ोन मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे इतना दुख है कि मैं ट्विटर अकाउंट का एक्सेस नहीं है मेरे पास। हो सकता है वो आदमी जिसके पास आपका फ़ोन हो वो देख रहा हो उस वक्त टीवी, उससे क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके पास मेरा फ़ोन है तो मेरा फ़ोन लौटा दीजिए, मैं खुद फ़ोन वापस लेने आऊँगी। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने पर राय तलब कर ली गई है। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक की अहम पेशरफ सामने आई है। सदर मुमलिकत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने पर राय तलब कर ली गई है। ये अहम डेवलपमेंट है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने पर राय तलब कर ली गई है। बिल्कुल, काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की मंजूरी दे चुकी है। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी गई और सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत भी कर दिए हैं और वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ये इक़दाम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट यानी शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कराने पर राय तलब की गई है। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा इस बारे में। जी देखिए, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि सेनेट में ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन कराए जाने हैं और उसके लिए वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन दी गई थी। अब एक तजवीज़ जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की तजवीज़ है। उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने उस रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए हैं और वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने की अवामी अहमियत के मामले पर सदर ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। इस रेफरेंस में कहा गया कि आइन में तरमीम किए बगैर इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 6 और 122 में तरमीम करने पर सुप्रीम कोर्ट जो अपनी राय दे और वफाकी काबीना इस मामले पर 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। जी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। आम डेवलपमेंट है, आम पेशरफ्त है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड्स के जरिए कराने पर राय तलब कर ली गई थी। अपडेट कर रहे थे उस्मान खान, आपका शुक्रिया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, अब ये अहम डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी कि सेनेट इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए हो, शो ऑफ हैंड के जरिए हो, तो अब सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये आइन का आर्टिकल 226 जो है उसके तहत इस बात का रिस्ट्रिक्शन है कि सिवाय वज़ीर आज़म के या वज़राए आला के जो इंतखाबात हैं उनके खिलाफ जो तहरीक अदम इत्मीनान है, उसके अलावा हर तरह के इलेक्शन जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। लेकिन जो इलेक्शन कवानीन है, ख़ासतौर पे जो सेनेट इलेक्शन का कानून शिक नंबर 122 है, उसमें इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट उसकी रोशनी में इस बारे में कोई राय दे सके, क्योंकि इस वक्त इतनी अक्सरियत नहीं है हुकूमत के पास कि वो आईनी तरमीम कर सके। लिहाजा उसने ये रास्ता जो है वो मुनासिब समझा है कि वो शो ऑफ हैंड के जरिए इसमें इस इलेक्शन को करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की राय तलब करे और सुप्रीम कोर्ट की अगर सपोर्ट मिल जाती है तो फिर वो कानून जो है वो उसमें तरमीम करके उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, खालिद अजीम साहब साथ ही रहिएगा। एक और ख़बर है, उससे बारे में भी आपसे बात करेंगे। कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेज़ी भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी हुई है और ऐसे में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। खालिद साहब इस बारे में भी बता दें। देखिए जी, ये अब पूरा साल गुजर गया है जिसमें 3000 से ज़ायद मरतबा वायलेशन हो चुकी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, और लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई सेंसिटिविटी, कोई किसी किस्म की कोई इंसानी हुकूक के हवाले से भारत के अंदर कोई सेंस मौजूद नहीं है, और आए दिन वो वहाँ पे लोगों को निशाना बनाता है। तकरीबन इस वक्त तक 27-28 अफराद जो हैं बेगुनाह शहरी वो जान से जा चुके हैं, जबकि जो जख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 2000 के लगभग बनती है। इसी तरह से वहाँ पे उन लोगों की अमलाक तबाह हुई हैं, वहाँ पे लोगों की जिंदगी अजीज नौक रह गई है, वो वहाँ पे उनके लिए रहना मुश्किल हो चुका है। लेकिन भारत के इस तर्ज अमल में किसी किस्म की कोई बार खिलाफ वर्जियाँ जारी है भारत की जानिब से, और ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। बहुत शुक्रिया खालिद अजीब साहब आपका। और कराची की यतीम तालिबा की सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा को महम रहमान को बे फॉर्म जारी करने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद मैट्रिक बोर्ड बच्ची का एडमिट कार्ड भी जारी कर देगा। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल हक। बहुत अहम फैसला सिंध हाई कोर्ट ने ये जारी किया है। बेसहारा और जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए बिलखुसूस ये बहुत अच्छी मिसाल कायम हुई है कि जो महम अपने इंसाफ के लिए यहाँ आई थी, अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी, मगर जो नादरा के कवानीन हैं वो रुकावट बन रहे थे। आज अदालत ने बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है। 10 रोज़ में महम का जो बेफॉर्म है वो जारी करने का हुक्म दिया है, और बेफॉर्म जारी होने के बाद ही मैट्रिक बोर्ड इसका क्लास 9 का एडमिट कार्ड जारी करेगी। ज़ाहिर है उसके बाद ये बच्ची अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकेगी। महम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि महम कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और मेरा बेफॉर्म जारी हो रहा है और मैं अपनी तालीम जारी रख सकती हूँ और मैं 9 क्लास का पेपर दे सकती हूँ। ये फैसला यकीनन उन बेसहारा बच्चों के लिए बहुत अहम है जो आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं, मगर जो नादरा के कवानीन हैं और हमारे जो तालीमी कवानीन हैं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के और इंटर बोर्ड से के जो रूल्स हैं वो रुकावट बनते हैं, उनके लिए ये फ़ैसला बड़ा अहम होगा। जी, तो इरफान उल हक बता रहे थे कि महम तो खुश हैं, लेकिन लाहौर के शहरी थोड़े परेशान हैं, क्योंकि लाहौर में इंतज़ामिया और तुर्क कंपनीज के मुआहिदों की मुद्दत ख़त्म होने के करीब आई है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लाहौर को साफ करने की जिम्मेदारी तुर्क कंपनियों से वापस ले ली गई। 31 दिसंबर को खत्म होने वाले कॉन्ट्रैक्ट से कबल ही कंपनियों ने कूड़ा उठाने का अमल रोक दिया। काम बंद होने से जहां नजर दौड़ाओ शहर में कचरा ही कचरा नजर आएगा। लाहौर ये कहते हैं कि बदबू और ताफुन से सांस लेना दुश्वार हो गया है। साफ सुथरे शहर की ये हालत देखकर अफसोस होता है। कभी ये बागों का शहर था, अब ये कचरा कुंडी वाला शहर है। एक आप खुद अंदाजा लगाएं कि पोश एरिया में ये हालात हैं तो बाकी छोटे बस्तियों में, और ये जिस तरह मक्का कॉलोनी हो गई या बाल्टन रोड हो गया, उन इलाकों का क्या हाल होगा। कोरोना की वबा हुई है, कह रहे हैं कि सारी दुनिया कह रही है कि सफाई की जानिब जाना चाहिए और हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, यानी कि जो बेहतर होना चाहिए था इस चीज़ को वो बेहतर नहीं हो पा रही। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली है। 24 दिसंबर तक लाहौर मुकम्मल साफ हो जाएगा। LWMC के मुताबिक तुर्क कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट में माली बेज़ाब्तियां पाई गईं और नैब के नोटिस भी मिलते रहे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में मजीद तौसी देना मुमकिन नहीं। हम एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करवा रहे थे, अब LWMC खुद करेगी। हमारे इसमें हर किस्म के प्लान्स रेडी हैं। हमने लाहौर को 9 जोन्स में नई प्लानिंग के तहत डिवाइड किया है। 9 जोन्स वही हैं जो लाहौर के हमेशा से हिस्टोरिकली 9 टाउन्स रहे हैं। उसमें हर टाउन में कितनी मशीनरी होगी, हर यूनियन काउंसिल में कितने बंदे इंगेज होंगे, कितने मिनट में कौन सी मशीनरी कहाँ जाके कितना कूड़ा उठाएगी और किस तरह करेगी, वो वी आर ऑलरेडी ऑन इट। तुर्क कंपनियों के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर कूड़ा उठाने वाली तमाम मशीनरी तहवील में ले ली है। कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मशीनरी टोटली हमारे दोनों कंपनियों के नाम पे है। उसमें एक चीज़ थी कि जो रीइंबर्समेंट कास्ट पे अगर इन्होंने हमें कोई चीज़ दिया या हमने रेंटल मॉडल में इनसे कुछ लिया हुआ है तो वो हमने इनको वापस करनी थी।
ہمیں نہ انہوں نے کوئی پیسے دیے ہیں، ری انویسٹمنٹ کاسٹ ہمیں نہیں ملی، اور نہ ان سے ہم نے کوئی رینٹل مشینری لی تھی۔ چلیں ایک وقت کو مان لیتے ہیں کہ جی مشینری ان کی تھی، کنٹریکٹ کے مطابق جو ہے تو ہماری جو ہے تو کم از کم 150 گاڑی زیادہ ہے۔ اگر کنٹریکٹ کو دیکھا جائے کہ ایک وقت مان لیتے ہیں کہ گاڑیاں ان کی تھی، لیکن اس وقت ہماری گاڑیاں جو ہے تو کنٹریکٹ سے کہیں زیادہ، یعنی 65% مشینری ہماری ایکسیس پہ چل رہی تھی، کچھ پھر 30% ہم نے رینٹل رکھی ہوئی تھی، تو وہ بھی انہوں نے جو ہے تو کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی لاہور میں کوڑا جمع ہونے پر سخت نوٹس لے کر متعلقہ حکام کی سرزنش کر چکے ہیں۔ پوش علاقے ہوں یا کچی آبادیاں، لاہور میں ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر لگنے پر عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت نوٹس لینے کے بجائے عملی اقدامات کرے۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے مردم شماری کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، جس مردم شماری کے خلاف سیاسی جماعتیں عدالت گئی، کل انہوں نے کابینہ میں اسی مردم شماری کو منظور کر لیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کل فیصلہ ہوا ہے وفاقی کابینہ میں کہ کراچی کی مردم شماری کو تسلیم کر لیا جائے۔ فیڈرل کیبنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ پی ٹی آئی جس نے کراچی سے 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لی ہیں، اور دوسری ایم کیو ایم، وہ ایم کیو ایم جس نے اپنی پوری کیمپین اس بات پہ چلائی ہے کہ 70 لاکھ لوگ کراچی سے لاپتہ کر دیے گئے۔ اس فلاڈ مردم شماری کو جس کے اوپر یہی پارٹیاں کورٹ میں گئی ہوئی ہیں، اس کو کل کیبنٹ نے اپروو کر دیا کہ بھائی اسی کو فائنل مان لو، اور آگے پاس آن کر دیا، وہ منظور ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم نے کیا تیر مارا ہے؟ اختلافی نوٹ ڈال دیا بیوقوف بنانے کے لیے۔